Assalamu alaikum aspirants. Today my topic to present is assessment and type of assessment. Myself Akib Ahmed and I am SST aspirant. First of all, what is assessment? Formally we go with the definition. Assessment is the process of gathering, analyzing and interpreting evidence to determine how well students are learning. It helps teacher understand students' progress and make instructional decision. Assessment usually students and teacher दोनों की हो रही होती है assessment during teaching and learning process of student. Both are assessed. Purpose क्या होता है assessment का? To improve teaching, quality of teaching and learning of student by providing feedback to both teachers and students. Next, we are going with the types of assessment. The very first one is formative assessment. Formative assessment को याद रखने के लिए एक ही वर्ड आप याद रखें, फॉर्मली जो होता है आमतौर पर डेफिनेशन क्या होती है इसकी? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ द ऑनगोइंग प्रोसेस of assessment to monitor student learning. It may be as well we can say not only bound to students but also we can say someone assess student as well, but as far as context of student and teacher, while teaching student assess formally their student that how much they are learning or understanding the topic, and purpose for formative assessment is provide feedback to improve teaching and learning. During formative assessment, teacher ask few questions related to the topic they are teaching. Ask students many questions related few questions to assess whether students are learning the concepts or not. Formative assessment can be taken in the form of quizzes, discussions, observations and peer reviews. Most important, what are the features of formative assessment? Formative assessment is conducted during the lesson, during the learning process. It is feedback oriented, provided timely feedback and teacher and student interaction. Low stakes mean only two stakeholders, teachers and student. The next type of assessment is summative assessment. The word summative, to understand this word summative assessment, simply आप लोगों ने एक ही वर्ड को याद रखना है, that is submission or submit. Submit करते हैं जब आप काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसको सबमिट करते हैं. तो देन इसी से हम summative assessment क्या होती है? The final evaluation of learning at the end of instructions, at the end of lesson, at the end of course, at the end of session. Purpose क्या होता है summative assessment का? To assign grades, judge achievement. यूजली आमतौर पे यही होता है कि फाइनल जो आपकी फाइनल टर्म जो होता है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप ग्रेड्स या स्कोर्स वगैरह असाइन करते हो, तो ये फाइनल असेसमेंट होती है. ये लेस फीडबैक होती है, इसमें फीडबैक कम दी जाती है. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? फाइनल एग्ज़ाम है, एंड ऑफ जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं. फीचर्स क्या होते हैं समेटिव असेसमेंट के? कंडक्टेड आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और उसके बाद कंडक्ट की जाती है. जजमेंट बेस्ड होती है. जजमेंट मीन के इस पे आपकी वैल्यूएशन हो रही होती है. इसके बाद हाई स्टेक्स होते हैं. इसमें आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन में हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपके टीचर्स, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स वगैरह एंड एज वेल एज पेरेंट्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं. इसमें क्या होता है? फीडबैक जो होती है लेस दी जाती है, बहुत कम फीडबैक होती है. थर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है. डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है? डायग्नोसिस से निकला है. डायग्नोस तशखीस करना, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बीमारी अगर है उसको डायग्नोस करते हैं तो वो क्या होती है? मेडिसिन देने से पहले बीमारी को डायग्नोस करेंगे तो प्री असेसमेंट है.
डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? ये प्री असेसमेंट है टू डिटरमाइंस लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। किसी भी लर्नर की या स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो जज करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए प्री असेसमेंट होती है। पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई गैप्स बिफोर इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जांपल इसमें आ जाती हैं, प्लेसमेंट टेस्ट आ जाते हैं, रेडीनेस क्विज़ेस आ जाते हैं, लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरीज आ जाती हैं। यूजली प्लेसमेंट टेस्ट में यही होता है, प्लेसमेंट टेस्ट लिए जाते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट करके। उसमें देखा जाता है कि आइदर दिस कैंडिडेट इज़ फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन है, एक छोटा सा ही फीचर जिसमें दिए हैं, टाइमिंग क्या होती है, पर्पस क्या होता है, एग्जांपल्स क्या हैं, फीडबैक क्या है। तो फॉर्मेटिंग इज़ ड्यूरिंग द लेसन, समेटिव इज़ एट द एंड ऑफ लेसन, डायग्नोस्टिक इज़ बिफोर द असेसमेंट। पर्पस क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? इम्प्रूव लर्निंग ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज टीचर आल्सो इम्प्रूव देयर टीचिंग स्टाइल। समेटिव असेसमेंट क्या होती है? एवेलुएट आउटकम्स को एवेलुएट किया जाता है, आइदर इट गुड और बैड। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है? आइडेंटिफाई द नीड्स। किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले असेसमेंट की जाती है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट काइंड ऑफ यू कैन से। तो उसमें देखा जाता है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या नीड्स हैं। एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्विज़ेस हैं, फीडबैक हैं। समेटिव की वही फाइनल टर्म एग्ज़ाम वगैरह एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह, और डायग्नोस्टिक में आ गए एंट्री टेस्ट। और फीडबैक फॉर्मेटिव में इमीडिएट उसी वक्त फ़ौरन दी जाती है। समेटिव असेसमेंट में बहुत कम होती है, और डायग्नोस्टिक में गाइड्स टीचिंग, उससे पहले रहनुमाई दी जाती है। इम्पोर्टेंस इन टीचिंग क्या है असेसमेंट की? इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शंस, हदायत दी जाती हैं। उसके बाद इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाया जाता है। टाइमली जो आप असेस कर रहे होते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट यूजली हेल्प करता है लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स या टीचिंग स्टाइल जो है उसको इम्प्रूव करता है। सपोर्ट इंडिविजुअलाइज टीचिंग, किसी भी टीचर को उसकी जो लर्निंग है उसको सपोर्ट करता है। और इन्हांस स्टूडेंट मोटिवेशन ड्यूरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट या सबमिटिव असेसमेंट, आप उसके बारे में जो रिमार्क्स देते हो, उसको फीडबैक देते हो, उसको कॉन्फिडेंट मिलता है, वो मोटिवेट होता है, मोटिवेशन होती है, उसकी लर्निंग और इम्प्रूव हो रही होती है। प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? अलाइन विद ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यूज़ मल्टीपल मेथड, फीडबैक देने के लिए भी मल्टीपल मेथड हैं, और प्रोवाइड टाइमली फीडबैक मिल जाती है, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन असेसमेंट, और स्टूडेंट को भी असेसमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है। असेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वन है, और ये बहुत ही, इनको आप एक दफ़ा गो थ्रू करके जाइएगा, ताकि आपका जो असेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको काउंटर कर सकें ईज़िली। आई होप आपको